children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Finding the Rarest Animal. So warm up. Have you ever thought why our parents and teachers always try to discipline us? Why is discipline so necessary to succeed in life? So बच्चे स्कूल में भी आप जाते हो, वहाँ भी डिसिप्लिन की बात होती है. आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी हमेशा डिसिप्लिन के बारे में आपको बताते हैं. सो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए? सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट डिसिप्लिन. A team of scientists was once sent to a jungle to record and study the rarest creature in the world. It had been rarely spotted and no one had ever been able to study its features. So its presence in the jungle was only confirmed by a few markings found in the forest and by its highly distinctive call heard by the tribal people of the jungle. Its call was similar to that of a wolf crying in pain. Oh, whoa. Okay. So the scene is about एक साइंटिस्ट की टीम है जो एक फॉरेस्ट में आई है एक रेयरेस्ट क्रिएचर को ढूंढने, जो कि किसी ने नहीं देखा है, बहुत ही कम लोगों ने देखा है. कहीं कहीं पर उसके फुटमार्क हैं और सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनी है ट्राइबल पीपल ने, जो कि एक वोल्फ की तरह थी. ठीक है. नाउ ईच साइंटिस्ट वांटेड टू बी द फर्स्ट टू फोटोग्राफ एंड स्टडी. अब जो साइंटिस्ट की टीम है उनमें से सब जो हैं वो चाहते थे कि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स वही पहले साइंटिस्ट बने जो उसकी फोटोग्राफ लें और उसके बारे में स्टडी करें. दे ऑल हैड डिसाइडेड अपॉन अ क्लियरिंग इन द जंगल नियर अ लेक टू बी देयर ऑब्जर्वेशन सेंटर वेयर दे. तो वो क्या करते हैं, जंगल में एक जगह को क्लियर करके वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाते हैं. सो hidden among bushes and trees for the animal to show itself. It was a nocturnal animal. और ये कैसा एनिमल था? Nocturnal, यानी कि रात को निकलने वाला. So the researcher passed their time discussing the day. The most extraordinary of them was Dr. Ramakrishnan. He was a patient and organized man with a big mustaches and a big turban. ठीक है, रामाकृष्णन इनमें से एक अलग साइंटिस्ट था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और एक बड़ा सा टर्बन उसने पहन रखा था. Every day before dinner he would spend some time in the hiding spot and pull all his technical equipment in their proper place. Now he did this with careful precision. The notebook was placed between two branches slightly to its left hand, the recorder, and he carved out 4 tiny holes in the trunk of the tree to put his 4 pencils that were always in the same order: black, red, blue and green. The camera was always hanging from the branch above him so that he could sit up and take quick shots of the area whenever he wanted to. He took care of very small details while organizing his things. तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज मैन था, हर एक चीज़ उसने बहुत ही ध्यान से रखी हुई थी. ट्री में होल बनाकर उसमें उसने उसको होल्डर बनाया हुआ था और करेक्ट ऑर्डर में ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन इसी तरीके से पेंसिल जो है उसमें रखी हुई थी. कैमरे को ब्रांचेस से हैंग किया हुआ था ताकि जहाँ का भी शॉट वो लेना चाहे वो इजीली क्लिक कर सके. सो द साइंटिस्ट स्पेंट मैनी डेज इन द जंगल बिफोर द एनिमल अपीयर्ड. अब साइंटिस्ट को बहुत टाइम हो जाता है जंगल में स्पेंड करते हुए उस एनिमल को ढूंढने के लिए. Most of them grew lax in the night vigil, but not Dr. Ramakrishnan. बहुत सारे लोग जो हैं वो बोर हो गए थे नाइट की साइड से, ठीक है, लेकिन डॉक्टर रामाकृष्णन उनमें से नहीं थे. He kept up with his routine and patiently waited for the animal from his hidden observation spot up in a tree. लेकिन डॉक्टर रामाकृष्णन जो है वो डेली एवरी नाइट को कि ध्यान से पेशेंटली उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और इस हिडन ऑब्जर्वेशन को ढूंढने के लिए वो बैठे रहते थे, वेट करते थे. One night the animal appeared all of a sudden at the edge of a lake to drink the water while everything was silent. एक दिन वो एनिमल अपीयर होता है जब सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था, शांत था, तो लेक के किनारे वो पानी पीने के लिए अपीयर होता है. Only a few meters away, the scientists heard its voice loud and clear, just as the tribal people had described. It was like the call of a wolf in pain. It lasted only for an instant before the animal grew alert because of the tumult the scientists made searching for their cameras and scratching on their notebook. और ये साउंड जो है बिल्कुल सेम वैसे ही थी जैसे कि ट्राइबल पीपल ने एक्सप्लेन की थी, द कॉल ऑफ अ वोल्फ इन अ पेन. और जैसे ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं
सब कैमरा लेकर उसको शूट करने के लिए जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं. सो द अनएक्सपेक्टेड नॉइसेस स्केयर्ड द एनिमल एंड इट शोट ऑफ बिफोर इट कुड बी सीन और स्टडीड इन एनी डिटेल. और ये जो अनएक्सपेक्टेड साउंड होती है, नॉइज़ आती है, एकदम से जो डिस्टर्बेंस आती है, साइंटिस्ट जो डिस्टर्बेंस बनाते हैं, दैट इज स्टिमुलेट कि कैमरा लो, नोटबुक लो, क्या लिखना है, क्या देखना है. तो इस साउंड से जो एनिमल है वो डर जाता है और कुछ भी शूट किया जाता है, कुछ भी उसकी डिटेल नोट की जाती है, उससे पहले वो डिसअपियर हो जाता है. The next morning they all shared their discoveries with each other. Some had succeeded to record its voice, others had noted down its movement, while the luckiest of all had even taken photograph of part of its tail or legs. तो ऐसे साइंटिस्ट जो हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. They all congratulated each other on their discoveries. But when Dr. Ramakrishnan walked in and showed them what all he had documented, they were stunned. यानी कि वो चौकन्ने रह गए जब डॉक्टर रामाकृष्णन ने उन्हें दिखाया कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया. He had taken several complete pictures of the animal as well as recorded its voice and made full color observation on the animal and all the collections were perfect. उन्होंने बहुत सारी डिटेल उस एनिमल के बारे में कलेक्ट की थी. ओड एंड एनवस सब देखकर बहुत ज़्यादा स्टंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं. एंड द रिसर्चर्स gathered around him and praised his work. They now understood his fascination with order as it had been the best way to prepare himself for working in the dark. अब जो उसकी फैसिनेशन थी साइंटिस्ट की, सब जो साइंटिस्ट हैं, बाकी के जो साइंटिस्ट हैं, वो अम्यूज़ हो जाते हैं और वो समझते हैं कि क्यों वो सारी चीज़ों को ऐसे ऑर्डर में रखते थे, ताकि एकदम से चीज़ों की ज़रूरत हो तो डिस्टर्बेंस ना हो, वो चीज़ों को क्विकली यूज़ कर सकें. सो दिस हैड मीन डॉक्टर Mr. Ramakrishnan had no problem in using all his equipment, the reorder, the camera and the recorder, the camera, the notebook and the pencils, all in just a fraction of a second and without having to look for them. यानी उनको सारी चीज़ें ऑर्डर में रखी थी, उनको कुछ भी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ी, ठीक है, और जल्दी से वो सारी चीज़ें डिस्कवर कर पाए और इन चीज़ों को यूज़ कर पाए. The work he published on the rarest animal in the world made Dr. Ramakrishnan eminent. और जो वर्क उन्होंने किया, जो इनका वर्क, जो इनकी डिस्कवरी थी रेयरेस्ट एनिमल के बारे में, उससे वो काफ़ी फेमस हो गए. He was given the honor of naming the animal and he named the animal after its distinctive call, the Volcry. और उन्होंने क्या नाम रखा उस एनिमल का? Volcry. तो देखा बच्चों आपने डिसिप्लिन की और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ों को रखने का जो वे है उससे कैसे आपको सक्सेस मिलती है, राइट? So there is a list of some famous scientists and their discoveries. फर्स्ट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया. रेचल कार्सन दैट फाउंडेड एनवायरमेंटल साइंस. गैलीलियो द फर्स्ट यूज द टेलीस्कोप टू व्यू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. जेन गुडोल दैट स्टडीज चिंपैंजीज इन द वाइल्ड फॉर मैनी ईयर्स. एंड जोन्स गुटेनबर्ग दैट इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. एंड द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन. सो बच्चे, दिस इज द चैप्टर. आई होप आपको समझ आया होगा. यू हैव टू read it once again, learn the word meaning and do the back exercise yourself.